Hello students, welcome to the channel SNW Physics Classes. If you really understand the concepts taught here, please turn the black thumb blue. That means like the video, share with your friends and subscribe to the channel SNW Physics Classes. Do not forget to hit the bell icon for the latest updates. Stay connected with me on Facebook, Instagram, or you can write using my Gmail ID. Links are given in the description box. This is the series of SC Verma solution and we are going to solve numerical problems of chapter 3 gravitation from question number 7 to 12. For the first part, you can click on the link given in the description box. Question number 7. Suppose the earth sinks such that its radius decreases to half the present value. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मान लो कि हमारा जो अर्थ है वो श्रिंक कर गया, सिकुड़ गया और उसका रेडियस जो है अभी के रेडियस से हाफ हो गया, आधा हो गया. What will be the acceleration due to gravity on the surface of earth? जब रेडियस हाफ हो जाएगा तो उस वक्त जो है acceleration of due to gravity क्या हो जाएगी अर्थ की. So let us see the solution. Suppose the earth sinks such that its radius decreases to half the present value. So जो present radius हो जाएगा, जो new radius of the earth हो जाएगा, that is 1/2 into 6400 kilometer. We know that the radius of earth is 6400 किलोमीटर. ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ जो है अभी हम लोग लेते हैं दैट इज 6400 किलोमीटर. और जब इसका रेडियस जो है वो हाफ श्रिंक कर जाएगा, देन ये डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से. 1/2 इंटू 6400 किलोमीटर तो हो जाएगा हमारा 3200 किलोमीटर. और वी कैन राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज 3.2 इंटू 10 to the power 6 मीटर. नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग को मालूम है दैट इज जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, capital G that is universal constant, m is mass of earth and re square is the radius of earth. ठीक है, तो जब हम लोग का रेडियस जो है हाफ हो गया उस कंडीशन में हम लोग इन सारे वैल्यूज को रखेंगे. मींस यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ हम लोग लेंगे दैट इज 3.2 into 10 to the power 6 मीटर. So putting all these values, G की वैल्यू है 6.7 into 10 to the power minus 11. Mass of earth 6 into 10 to the power 24 kg divided by r square that is 3.2 into 10 to the power 6 multiplied by 3.2 into 10 to the power 6 meter. On calculating this, ठीक है, इनको कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों को जो वैल्यू मिलेगा दैट इज 39.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीन्स जो नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा जब अर्थ की रेडियस हाफ हो जाएगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हो जाएगी 39.2 meter per second square. Thus, the acceleration due to gravity on the surface of Earth is 39.2 meter per second square. Question number 8. A body weighs 120 Newton on Earth. ठीक है, किसी बॉडी का वेट जो है 120 न्यूटन है अर्थ पे. देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट वेट ऑन द मून. ठीक है, मून पे उसका वेट क्या हो जाएगा हम लोगों को फाइंड आउट करना है. Weight of the body on earth is 120 Newton. So we will find out first mass. ठीक है, mass क्या हो जाएगा F is equal to m into g, m into g. G means acceleration due to gravity. Force यहाँ पे क्या है that is the weight of the body 120 Newton. G 9.8. यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू पुट किया है 120 Newton is equal to m into 9.8 meter per second square. Now we will find out the mass of the body 120 by 9.8 and we will get that the mass of the body is 12.24 kg. Now weight on the moon will be equal to mass of the body into acceleration due to gravity on the surface of moon. ठीक है, मून पे जो है 1/6 हो जाता है acceleration due to gravity. ठीक है, तो 1/6 हम लोग acceleration due to gravity on moon find out करने के लिए 9.8 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.63. ओके, so acceleration due to gravity on the surface of moon will be 1.63 into 10 meter per second square. ओके, मास जो है हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट किए 12.24 kg into acceleration due to gravity on the surface of moon that is 1.63. इसको कैलकुलेट करने के बाद we will get the value 19.9 Newton. Or we can say approximately that is 20 Newton because we have to find out the approximate weight of the moon, weight of the body on the moon.
Thus the weight of the body on the surface of moon is 20 न्यूटन. ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ पे उसका जो वेट था दैट वाज 120 और जब मून पे हम लोग चले जाएंगे तो उसका वेट हो जाएगा 20 न्यूटन. क्वेश्चन नंबर 9, calculate the value of acceleration due to gravity at place 3200 किलोमीटर above the earth surface. ठीक है, let it be earth, ये हमारा अर्थ है और हम लोगों ने किसी बॉडी को, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है above the earth surface that is 3200 किलोमीटर. ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ से हम लोगों ने उस बॉडी को रखा है 3200 किलोमीटर above. ठीक है, let us assume h is the height of that body above the earth surface. तो 3200 किलोमीटर को हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट किया by multiplying it by 1000. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में we can write 3.2 into 10 to the power 6 meter. Now r is the radius of earth. ठीक है, r जो है that is radius of earth and we know the value of the radius of earth is 6400 kilometer. In standard form we can write 6.4 into 10 to the power 6 meter. We know the value of acceleration due to gravity that is 9.8 meter per second square. Now using this formula, ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों को जब मैंने फॉर्मूला कराया था तो उसमें ये फॉर्मूला है. ओके, यू कैन सी लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. G dash means new acceleration due to gravity above the earth surface. ठीक है, अगर हम लोगों ने बॉडी को h हाइट पे रखा है तो जो हमारा acceleration due to gravity होगा we can calculate by using this formula. G dash is equal to G into R square, that is the radius of earth, divided by R plus H. H is the height of the object above the earth surface. Now we will calculate the value by substituting these values. ठीक है, G की वैल्यू 9.8 into R square, that is square of 6.4 into 10 to the power 6. ठीक है, इसका हम लोगों ने स्क्वायर किया डिवाइडेड बाय r प्लस एच स्क्वायर. r यहाँ पे क्या है हमारा 6.4 प्लस 3.2. ओके, इंटू 10 टू द पावर 6 स्क्वायर हो जाएगा मेरा 10 टू द पावर 12. ओके, नाउ ऑन स्क्वायरिंग दिस, ठीक है, इसके सम को जब हम लोगों ने स्क्वायर किया तो हमारा जो कैलकुलेशन है दैट इज 92.16 into 10 to the power 12. 10 to the power 12 और 10 to the power 12 ये जो है हमारा जो कैंसिल हो जाएगा. नाउ ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट 4/9. ठीक है, इसको सॉल्व करने पे हम लोगों को मिलेगा 4/9. सो 9.8 into 4/9 will be equal to 4.355 meter per second square and approximately we can say 4.36 meter per second square. Thus the value of G at place 3200 kilometer above the earth surface is 4.36 meter per second square. ठीक है, नया जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जब हम लोगों ने उस ऑब्जेक्ट को 3200 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस रखा तो जो न्यू हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा दैट इज 4.36 into 4.36 meter per second square. Question number 10. The acceleration due to gravity at a place 0.2 meter per second square. ठीक है, किसी पर्टिकुलर जगह पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, लेट इट बी फ्रॉम हाइट h. ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि h हाइट पे जो g डैश की वैल्यू है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अबव द अर्थ सरफेस. ठीक है, g डैश की जो वैल्यू है दैट इज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइंड इट्स हाइट अबव द अर्थ सरफेस. तो इस केस में हम लोगों को हाइट निकालना है कि कितना ऊपर है ये सरफेस, कितनी हाइट पे है जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा. नाउ अगेन वी विल यूज द सेम फॉर्मूला. g डैश इज इक्वल टू g into r by r plus h होल स्क्वायर. तो g डैश की वैल्यू है 0.2 into 9.8 मल्टीप्लाइड बाय r plus h होल स्क्वायर. ठीक है, अब 9.8 को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लाएंगे LHS के साइड
So we will get r by r plus h whole square which is equal to 1 by 49. ठीक है, इन दोनों को कट करेंगे 0.2 डिवाइडेड बाय 9.8. ठीक है, 9.8. तो ये एलसीएम सॉरी ये डेसिमल जो है हमारा ये खत्म हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा 1 by 49. ओके, अब इस स्क्वायर को हम लोग जब आरएचएस के साइड लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा 1 by 7. नाउ सॉल्विंग दिस वी विल गेट दैट h is equal to 6 into r, that is the radius of earth. ठीक है, r यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ. तो यहाँ पे जो h है वो हो जाएगा मेरा 6 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ. तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 into r, that is we know the value of radius of earth, that is 6400 kilometer. So the height above the earth's surface is 38,400 kilometer. मतलब अगर हम लोग 38,400 किलोमीटर above the earth surface जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा acceleration due to gravity, that is 0.2 meter per second square. Question number 11. As one moves to a place 3,200 kilometer above the earth's surface, the acceleration due to gravity reduces to 4 by 9 of its value at the earth's surface. ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई 3,200 किलोमीटर चला जाएगा अर्थ सरफेस के ऊपर, ओके, अर्थ सरफेस के ऊपर अगर वो 3,200 किलोमीटर ऊपर चला जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूस करेगा 4 by 9 टाइम्स. ठीक है, 4 by 9 टाइम्स उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूस करेगी. ओके, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम द गिवन डेटा. ठीक है, ये जो डेटा हमारे पास है प्रोवाइडेड, दैट इज द वैल्यू ऑफ h एंड रिडक्शन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो इस डेटा से हम लोगों को फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ अर्थ. So let us see the solution. Height above the earth surface, that is 3,200 kilometer. Let the radius of earth be r. Thus according to the following expression we know the formula. ये formula है हमारे पास, expression है यहाँ पे. तो हम लोगों को मिल जाएगा, अगर हम लोग ओरिजिनल रेडियस को, सिर्फ रेडियस को कंसीडर कर रहे हैं, उस हाइट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं जिसपे वो ऑब्जेक्ट है, तो हमारा एक्सप्रेशन है g is equal to g into mass of earth divided by radius of earth. Let it be equation 1. At h height, ठीक है, हाइट जब h हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड सेंटर ये हो जाएगा मेरा 3,200 प्लस r मींस द रेडियस ऑफ अर्थ. तो इन दोनों के सम को हम लोग क्या सपोज किए, लेट इट बी h. अगेन वी विल हैव दिस सेम फॉर्मूला. अब जो है, जो g है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा g है इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 by 9 टाइम्स. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है इट्स वैल्यू रिड्यूस्ड टू 4 by 9 टाइम्स. तो हो जाएगा 4 by 9 g इज इक्वल टू जी एम मास ऑफ अर्थ. मास ऑफ अर्थ तो चेंज नहीं हो रहा है ना यहाँ पे, डिवाइडेड बाय h प्लस r. ठीक है, h प्लस r का होल स्क्वायर था हमारे क्वेश्चन में. जब हम लोग h हाइट पे अगर जाते थे तो h प्लस r को हम लोगों ने कैपिटल h यहाँ पे सपोज किया है, यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया उसे कैपिटल h. ओके, नाउ ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेट अस सी हियर. ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 को हम लोगों ने डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या मिला हम लोगों को, g और ये g कैंसिल, gm both gm and gm cancel. So we will get 4 by 9 is equal to r by h square. ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे r बचा और ये बचा h. ठीक है, और दोनों का स्क्वायर हो जाएगा हमारा टोटल ये होल स्क्वायर. नाउ r डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू ऑफ h, यहाँ पे h जो है दैट इज 3,200 प्लस r, ये है हमारा वैल्यू. ये स्क्वायर जो है LHS के साइड जाकर के क्या हो जाएगा, ये 2 by 3 अंडर रूट हो जाएगा ना. अंडर रूट 4 by 9 इज इक्वल टू 2 by 3 विच इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय 3,200 प्लस r. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोगों को मिल जाएगा द रेडियस ऑफ अर्थ. कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग. ठीक है, ये जो मेरा टर्म है डिनोमिनेटर में आरएचएस के साइड, ये चला जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 into 3,200 प्लस r, एंड ये जो हमारा डिनोमिनेटर है 3, ये आ जाएगा हमारे आरएचएस में
3 into r. Okay, now 3r minus 2r will be equal to r, so r is equal to 3400 किलोमीटर which is the radius of earth. ठीक है, ये सारे डेटा जो दिया हुआ है ये इससे हम लोग कैलकुलेट कर दिए what is the real radius of earth. Thus the radius of earth is 6400 kilometer. Question number 12, a ball is dropped from a cliff. ठीक है, किसी क्लिफ से एक बॉल को हम लोगों ने ड्रॉप किया. ओके, its speed after 2 seconds is dropped. We have to find out its speed कि वो 2 सेकंड के बाद किस स्पीड से वो चल रहा है. Let us see the solution. First solution हम लोग देखेंगे यहाँ पे. Velocity after 2 seconds using first equation of motion. ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी का जब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस gt. हियर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट बॉल, जबकि वो बॉल जो है वो रेस्ट से उसे मूव कराया गया, सो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0. सो g इंटू टी दैट इज 9.8 इंटू 2, बिकॉज जो टाइम यहाँ पे दिया हुआ है कि हम लोगों को 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी वो फाइंड आउट करनी है. सो v इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड. Okay, now second question, its speed when it has fallen through 78.4 meter. ठीक है, जब वो डिस्टेंस जो है 78.4 मीटर कवर कर चुका है, ठीक है, नीचे आ रहा है, और जब वो डिस्टेंस 78.4 मीटर कवर कर चुका है उस वक्त उसकी स्पीड क्या होगी. नाउ यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. ओके, v स्क्वायर अगेन u स्क्वायर विल बी 0. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो है उसकी 0 है. 2 इंटू वैल्यू ऑफ g दैट इज 9.8, और जो हाइट यानी कि वो डिस्टेंस कवर किया दैट इज 78.4. अगेन मल्टीप्लाइंग दिस v स्क्वायर इज इक्वल टू 1536.64. ठीक है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 39.2 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड आंसर हमारा आ गया 39.2 मीटर पर सेकेंड. Question number 3, the time taken in falling through 78.4 meter. ठीक है, 78.4 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में उसको टाइम कितना लगा. Let us see the solution. Let time taken in falling through 78.4 meter be t सेकेंड. चलो हम लोग मान लेते हैं कि 78.4 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में उसको t सेकेंड टाइम लगा. अगेन यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. यहाँ पे हम लोग फ्री फॉल की बात कर रहे हैं तो h जो है दैट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो जो s यानी डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया. u इज इनिशियल वेलोसिटी, अगेन इट इज 0, u 0 हो जाएगा हमारा, प्लस 1/2 एज इट इज फ्री फॉल, तो यहाँ पे हो जाएगा g t स्क्वायर. ओके, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज, h की वैल्यू है 78.4 which is equal to 0 into t, u into t that is u is 0 plus 1/2 into 9.8 into t स्क्वायर. ठीक है, टी स्क्वायर यहाँ पे हम लोग को टाइम फाइंड आउट करना है. टी स्क्वायर इज इक्वल टू 78.4 डिवाइडेड बाई 4.9. ठीक है, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16. नाउ टी इज इक्वल टू अंडर रूट 16 दैट इज 4 सेकेंड. दस द टाइम टेकन इन फॉलिंग थ्रू 78.4 मीटर इज 4 सेकेंड. ठीक है, 4 सेकेंड में जो है वो 78.4 मीटर के डिस्टेंस को कवर करेगा. If you have any problem, any confusion related to any calculation of this video, you can write in the comment section. Like, share and subscribe to my channel. Thank you very much for watching.